Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about topic input, output and device management of operating system. Input, output and device management in operating system, it refers to how the system handles the communication between computers, hardware, software, and how to proper input output device management ensure the efficient data transfer, resource allocation and control over hardware devices. Now first point I will discuss about input output devices. There are hardware components which allow the system how to interact with the external environment, and they also classified as input devices and output devices. In input devices include a keyboard, mouse, scanner, etc. And in output devices also includes a printer, monitor, speakers, etc. And device driver means device drivers are the specialized software components which allow the operating system how to communicate with the hardware devices, and how each device has a corresponding driver which understand the commands and protocols which are necessary for the operations. Input output control is such type of mechanism which manages the communication between hardware and software, and it must handle the request from application to access the input output devices, and it also control it input output control also includes buffering, scheduling, providing interface for the communication. And next point is input output scheduling. Input output scheduling includes operating system which must schedule and must prioritize multiple input output requests which comes from various applications. And for this we use scheduling algorithms like first come first served, shortest seek time, first scan, c scan, etc., which are commonly used to minimize waiting time and improve the system's performance. And next point is input output buffering. Output buffering are temporary storage which area in memory which is used for saving the data, for in which data can be held while the transferred between devices. You can say buffers are a temporary storage area in memory where the data can be held while being transferred between devices, and buffering also helps the smooth out discrepancies between the speed of device and the system, and also allow the efficient handling of data. In short we can say buffer is a temporary storage area जहाँ पर मैम जो मतलब जहाँ पर डेटा को कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जो कि स्मूथ वर्किंग के लिए यूज होता है, जो डिवाइस की स्पीड को भी इंक्रीज करता है और इससे एफिशिएंट हैंडलिंग हो जाती है डेटा की. नाउ नेक्स्ट इज ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस you can say that it is a method which allow the input output devices how to transfer the data from directly to or from memory without any involving a cpu, and it will improve the performance, and that is particularly used for the high speed data which transfers like a disk input or video processing. Next is a interrupt handling. Interrupt handling means interrupts are signals which is sent to the CPU by input output devices, and you can say internal events which requires immediate attention. And operating system uses interrupt handlers how to prioritize the task and how to manage the input output operations effectively. When interrupt occurs, then operating system pauses, stop for some time to the current processes and handles the interrupt and then resume the processes again. I will repeat again these points. Hmm. In simple language, we can say input output device management ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनपुट आउटपुट एंड डिवाइस मैनेजमेंट रेफर करता है किसको,
कि कैसे सिस्टम कम्युनिकेशन को हैंडल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको कैसे हैंडल करता है, वो सारा वर्क कौन मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और प्रॉपर इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर को, रिसोर्स एलोकेशन और जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको उनके ऊपर कंट्रोल को। इसके लिए मेन जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट में, वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है? ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जो सिस्टम को अलो करते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को क्लासीफाई करना है। ये सारा वर्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है। डिवाइस ड्राइवर वो ड्राइवर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलो करते हैं कि कैसे उन्होंने हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है। और हर एक जो डिवाइस है उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइवर होता है जो अंडरस्टैंड करता है कि कौन सी कमांड दी गई है, क्या प्रोटोकॉल्स उसके लिए जरूरी है ऑपरेशंस के लिए, उसको उसके साथ वो डील करता है। और इनपुट आउटपुट जो कंट्रोल है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मैनेज करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हैंडल करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम एप्लीकेशन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो कंट्रोल जो है उसमें बफरिंग शेड्यूलिंग होती है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए। इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल और प्रियोरिटाइज्ड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट्स होती हैं जो वेरियस एप्लीकेशन से आती हैं और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है, स्कैन और सी स्कैन, इनको यूज़ किया जाता है ताकि वेटिंग टाइम को मिनिमाइज किया जा सके और सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। और इनपुट आउटपुट बफरिंग होती है। इसमें बफर्स एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होते हैं मेमोरी के अंदर जहाँ पर डेटा को रखा जाता है और फिर उसको डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। बफरिंग हेल्प करती है डिस्क्रिपेंसीज जो होती हैं स्पीड ऑफ डिवाइसेस और सिस्टम के बीच में उसको स्मूथ करने के लिए, और ये एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ डेटा भी प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है जो एक मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक ऐसा मेथड होता है जो अलो करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि कैसे आप उसने डायरेक्ट डेटा को ट्रांसफ़र करना है डायरेक्टली और फ्रॉम मेमोरी बिना किसी सीपीयू के यूज़ इंटरफेरेंस के। और ये इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को। ये मतलब कह लो कि एक तरह यूज़फुल है हाई स्पीड डेटा के लिए कि हाई स्पीड के साथ अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़फुल है। जैसे कि डिस्क इनपुट आउटपुट या वीडियो प्रोसेसिंग के लिए। इंटरप्ट हैंडलिंग में क्या होता है? जो इंटरप्ट्स होते हैं वो वो सिग्नल्स होते हैं जो सीपीयू को भेजे जाते हैं बाय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और इंटरनल जो इवेंट्स हैं वो उनके लिए जो इमीडिएट अटेंशन चाहिए वो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट हैंडलर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो टास्क की प्रायोरिटी को सेट कर सके, मैनेज करें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को इफेक्टिवली। जब इंटरप्ट अकर करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम पोज करेगा करंट प्रोसेसेस को और इंटरप्ट को हैंडल करेगा, फिर प्रोसेस को अगेन क्या करेगा? रिज्यूम कर लेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे इनपुट आउटपुट एंड डिवाइस मैनेजमेंट के। कौन कौन से पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए? फर्स्ट हमने किया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। सेकंड हमने डिवाइस ड्राइवर के बारे में डिस्कस किया, डिवाइस ड्राइवर्स। थर्ड हमने डिस्कस किया इनपुट आउटपुट कंट्रोल। एंड फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग के बारे में। एंड फिफ्थ वन हमने डिस्कस किया इनपुट आउटपुट बफरिंग के बारे में, इनपुट आउटपुट बफरिंग। सिक्स्थ हमने डिस्कस किया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सेवंथ हमने डिस्कस किया इंटरप्ट हैंडलिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग। एंड नाउ एट्थ पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। फर्स्ट synchronous input output, asynchronous
इनपुट आउटपुट मीन्स टू टाइप्स के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, एक होते हैं सिंक्रोनस और दूसरा असिंक्रोनस. सिंक्रोनस इनपुट आउटपुट मीन्स द सिस्टम वेट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट बिफोर कंटिन्यूइंग विद नेक्स्ट टास्क. मीन्स कि नेक्स्ट टास्क के साथ कंटिन्यू करने से पहले वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं, उसको सिंक्रोनस इनपुट कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं. असिंक्रोनस जो होते हैं वो कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग करते रहते हैं अदर टास्क के साथ और वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट इंप्रूविंग सिस्टम एफिशिएंसी. मीन्स असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट में सिस्टम कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग करता है अदर टास्क को while waiting for input output operations to complete and improving the system performance. Next point है file system and device access. File systems and file systems and device access. Sorry. इसमें क्या कहता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है वो फाइल सिस्टम के साथ क्लोजली टाइड करती है, closely tied to file system as a devices like hard drive or SSDs which are used to store the data. And operating system जो है वो हैंडल करता है फाइल ऑपरेशंस को, जैसे कि रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, ओपनिंग क्लोजिंग फाइल्स वगैरह, और इंश्योर करता है कि स्टोरेज डिवाइसेस को करेक्ट ही एक्सेस करेगा वो. इन simple language we can say input output management is closely tied to file system as devices like hard drives or SSDs, and these are used to store data. An operating system also handles the file operations like reading, writing, opening, closing files, and ensuring correct access to storage devices. Next is a virtual devices. Virtual devices. In virtual devices, some operating systems allow virtualizing input-output devices so that multiple processes they can use a single physical device simultaneously without any interfering with each other. Next है error handling. Error handling. The operating system must handle the input-output errors like device failures, bad sectors, or storage. It typically provides mechanisms to report errors and retry the operations and log issues for diagnostics. Uh, in short, we can say ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट एरर्स को हैंडल करता है. डिवाइस जैसे कि डिवाइस फेल हो जाता है या बैड सेक्टर्स जो स्टोरेज पर आ जाते हैं तो उनको हैंडल करता है, और ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो आपको एरर के बारे में रिपोर्ट करता है, ऑपरेशंस को रिट्राई करता है और लॉग इश्यूज भी प्रोवाइड करता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए. एंड नाउ नेक्स्ट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. इनपुट आउटपुट management in modern operating system. फर्स्ट इसमें आता है यूनिफाइड ऑपरेटिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम. सेकेंड पॉइंट यूजर स्पेस वर्सेस कर्नल स्पेस. थर्ड पॉइंट इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग.
यूनिफाइड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में क्या बताया है कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एक यूनिफाइड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को क्या कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और अलो करते हैं सॉफ्टवेयर्स को कि वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करे एक कंसिस्टेंट वे में। और इससे जो मतलब जो भी उसको उसकी फिजिकल डिवाइसेस यूज़ की जा रही है उसके साथ। सेकेंड, यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में ये बताया है कि जो मॉडर्न सिस्टम है उनमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं एक उनको स्प्लिट किया जाता है यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस के अकॉर्डिंग। विद डिवाइस ड्राइवर्स वहाँ पर रिसाइड करते हैं कर्नल स्पेस में और एप्लीकेशन लेवल जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का वो यूज़र स्पेस प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है। और इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं जैसे सेलेक्ट फंक्शन यूज़ कर लिया, पोल फंक्शन, ई पोल फंक्शन यूज़ कर लिया। मीन्स कि इसमें क्या यूज़ होगा, सेलेक्ट फंक्शन, पोल फंक्शन या ई पोल फंक्शन। इन यूनिक्स और लिनक्स में इसको यूज़ किया जाता है, एक सिंगल प्रोसेस को अलो किया जाता है कि हाउ टू हैंडल मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कॉन्करेंटली एंड इट ऑल्सो improves द एफिशिएंसी ऑफ सर्वर applications or system which handles a large number of input output operations। आप ये कह सकते हो कि इनपुट आउटपुट जो मैनेजमेंट है मॉडर्न सिस्टम के अंदर उसमें यूनिफाइड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम को यूज़ किया जाता है जो एक ऐसा सब सिस्टम प्रोवाइड करता है जो हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को एब्स्ट्रैक्ट करके छुपा के रखता है और ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सॉफ्टवेयर लॉ करता है जो कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है कंसिस्टेंट वे में। और यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में ये बताया है कि जो मॉडर्न सिस्टम होते हैं उनमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो है उनको यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में स्प्लिट किया जाता है और विद डिवाइस ड्राइवर्स जो कि कर्नल स्पेस में ही होते हैं, रिसाइड होते हैं। और एप्लीकेशन जो लेवल है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का वो यूज़र स्पेस प्रोग्राम के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। और इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सिंग वो टेक्निक्स हैं जिसमें सेलेक्ट फंक्शन, पोल फंक्शन, ई पोल फंक्शन यूज़ किया जाता है यूनिक्स और लिनक्स में और एक सिंगल प्रोसेस को अलो करते हैं कि हाउ टू हैंडल मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कॉन्करेंटली and how to improve the efficiency for server applications or systems, how to handle a large number of input output operations. At the end we can say that input output and device management both are essential for any operating system for ensuring the smooth and efficient communication between hardware devices and software devices, software applications. And operating system must manage all these devices and they must interact all these devices and handle the errors and provide resources in which way they can optimize the system performance and user experience. Thank you. If you like my video, please like and share my channel with your friends for next upcoming videos.